Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 12, the conjunction. So let's start. Chapter number 12, the conjunction. Read and understand. पढ़ते हैं और समझते हैं. Atul is a businessman and Mukul is a teacher. Farmer is poor but he is honest. Mayank or Sagar lives in Delhi. If you come here, I will go with you. I could not go to school because it was raining. In the above sentences, the colored words and, but, or, if and because join two words or two sentences. Hence, these are conjunctions. तो ऊपर जो भी हमने sentences पढ़े उसमें जो colored words हैं and, but, or, if, because ये दो sentences या दो words को join कर रहे हैं तो इन words को हम कहते हैं conjunctions. Thus, we can say the words which join two words, clauses and sentences are called the conjunctions. तो वो वर्ड्स जो दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं वो कहलाते हैं कंजंक्शंस. लेट अस रिवाइज द फॉलोइंग कंजंक्शंस. कुछ कंजंक्शंस पढ़ लेते हैं. फर्स्ट, एंड शोज एडिशन ऑफ टू थिंग्स. जब हम दो चीजों का एडिशन करते हैं, दो चीजों के साथ में बात करते हैं, तब हम एंड का यूज करते हैं. आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. सेकेंड, बट शोज कंट्रास्ट और ऑपोजिट आइडियाज. जब दो चीजें अलग होती हैं, ऑपोजिट होती हैं, तब हम बट का यूज करते हैं. जैसे आई लाइक एप्पल्स बट आई डोंट लाइक ऑरेंजेस. थर्ड, बिकॉज गिव्स अस अ रीजन. जब हमें कोई रीजन बोलना होता है तब हम बिकॉज का यूज करते हैं. जैसे आई वेंट टू दिल्ली बिकॉज आई वॉन्टेड टू विजिट द रेड फोर्ट. फोर्थ, until and when show time. until और when का यूज हम टाइम शो करने के लिए करते हैं. sit here until I come back. the crops ripen when the weather is warm. fifth, though and although mean in spite of. though और although का यूज हम कब करते हैं? in spite of. they show a fact that makes another fact look surprising or unusual. ये इस तरीके का फैक्ट बताते हैं कि जो दूसरा फैक्ट है वो बिल्कुल सरप्राइजिंग लगे. Though we were hungry, we did not eat stale food. Although she tried very hard, she could not get the job. उसने बहुत मेहनत की पर फिर भी उसे जॉब नहीं मिली. Sixth, that is used to give a reason, an aim or a result. That का यूज हम करते हैं रीजन देने के लिए या किसी एम के लिए या रिजल्ट के लिए. Tell your father that I am standing at the gate. Seventh, for and since are used to give reasons. for और since का यूज भी हम reasons के लिए ही करते हैं. I made a card for it was my sister's birthday. Since it was sister's birthday, I made a card. Eighth, while means during a period of time. It also shows contrast between two things. while का यूज हम करते हैं जब हमें कोई टाइम पीरियड शो करना हो या फिर दो चीजों में कंट्रास्ट शो करना हो. While I was sleeping, the thief escaped. Jay likes pop music while his sister likes classical songs. Or indicates choice. और का यूज हम करते हैं चॉइस बताने के लिए, या तो ये या ये. Which balloon do you want? Red or blue? Word pairs as conjunctions. Some conjunctions are used in pairs such as not only but also. कुछ conjunctions pair में यूज होती हैं जैसे not only but also. Read these sentences. He is a singer, she is a dancer. तो अब इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे कंजंक्शन के थ्रू? Not only is he a singer, but also a dancer. वो सिर्फ सिंगर ही नहीं है बल्कि डांसर भी है. He is not only a singer but also a dancer. तो दोनों तरीके से हम इसको कंजंक्शन को इसमें ऐड कर सकते हैं. She paints, she cooks, she plays hockey. तो इसको कैसे लिखेंगे? Not only does she paint and cook but also plays hockey. ऐसे ही not only does she paint, cook but she also plays hockey. तो इस तरीके से कंजंक्शन का यूज करके हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे. Now it's time to answer. A exercise. Darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम correct option को mark करेंगे. First is a conjunction joins two. Conjunction किन दो चीजों को join करता है? Words को भी
सेंटेंसेस को भी, क्लॉजेस को भी। तो उसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड, विच कंजंक्शन शोज एडिशन ऑफ टू थिंग्स। अगर हम दो चीजें ऐड कर रहे हैं तो कौन से कंजंक्शन के थ्रू करते हैं? एंड, डी। नेक्स्ट, थर्ड, विच कंजंक्शन शोज कंट्रास्ट। कंट्रास्ट कौन सा कंजंक्शन शो करता है? बट, सी। नेक्स्ट, विच कंजंक्शन शोज चॉइस। चॉइस कौन सा कंजंक्शन शो करता है? और, बी। नाउ सी एक्सरसाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट इज वेट हेयर अंटिल। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? वेट हेयर अंटिल आई टेल यू टू गो। मतलब तब तक यहां पर वेट करो जब तक मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहता। व्हेन इट इज विंटर, जब सर्दियां होती हैं, द वेदर विल बी, द वेदर विल बी कोल्ड। तब वेदर कैसा होता है? ठंडा। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ डी एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट कंजंक्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। करेक्ट कंजंक्शंस चूज करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज डैश माय पेरेंट्स कम होम आई कुड नॉट हैव फूड। तो यहाँ पर आएगा अंटिल माय पेरेंट्स केम होम, जब तक मेरे पेरेंट्स घर नहीं आ जाते, आई कुड नॉट हैव फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। सेकेंड, आई वॉज नॉट फीलिंग हंग्री, मुझे भूख नहीं लग रही थी, अंटिल आई सो, जब तक मैंने उन शाइनी एप्पल्स को नहीं देखा था। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 12 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको कंजंक्शन समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।